یہ قصہ بغداد کے ایک قدیم گاؤں کا ہے جہاں ایک بوڑھی خاتون اپنے خستہ حال مکان میں رہتی تھی۔ یہ بوڑھی عورت انتہائی نیک اور رحم دل تھی۔ اس عورت کے 3 بیٹے تھے جنہیں اس نے بڑی محنت اور مشقت کاٹ کر جوان کیا تھا۔ اس عورت کے بیٹے ابھی چھوٹے ہی تھے کہ اس کا شوہر کسی روزگار کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا۔ وہاں جا کر وہ لاپتہ ہو گیا۔ کافی عرصہ گزر گیا مگر اس کی کوئی خبر نہ مل سکی۔ وہ عورت اپنے بچوں کو اکیلا چھوڑ کر اپنے شوہر کو ڈھونڈنے بھی نہیں جا سکتی تھی، اس لیے اس نے اپنا سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا۔ لیکن اسے یہ امید ضرور تھی کہ اس کا شوہر ایک نہ ایک دن واپس ضرور آئے گا، اس لیے اس نے دوسری شادی بھی نہیں کی اور اکیلے اپنے بچوں کو پالنے کا فیصلہ کر لیا۔ چونکہ اس عورت کے پاس کوئی ہنر نہیں تھا، چنانچہ اگلے دن وہ خلیفہ کے دربار میں پہنچی اور مدد کے لیے درخواست کی۔ خلیفہ نے اس سے اس کے شوہر کے بارے میں پوچھا تو اس بوڑھی عورت نے اپنی مکمل داستان خلیفہ کو سنا دی کہ کیسے اس کا شوہر روزگار کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا اور وہاں جا کر لاپتہ ہو گیا۔ وہ خلیفہ سے کہنے لگی، اب میں اپنے بچوں کو بھوک سے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، اس لیے میں نوکری کی غرض سے آپ کے پاس آئی ہوں۔ خلیفہ رحم دل تھا، اس نے عورت پر ترس کھایا اور اس عورت کے پاس کوئی ہنر نہ ہونے کی وجہ سے 30 دینار ماہانہ اپنے دربار میں کام پر رکھ لیا۔ اب وہ عورت خلیفہ کے محل میں صاف صفائی کا کام کرنے لگی۔ اس عورت نے تقریباً 20 سال خلیفہ کے محل میں کام کیا۔ آج اس کے بچے جوان ہو چکے تھے۔ گھر میں غریبی اور شوہر کا سایہ نہ ہونے کے باوجود بھی اس عورت نے اپنے بچوں کی پرورش میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ وقت گزرتا گیا اور اس عورت کا بڑا بیٹا جس کا نام اسفن تھا، بغداد کے ایک بڑے بازار میں وہ تاجر بن گیا، اور چھوٹا بیٹا جس کا نام دئیل تھا، اس نے ریشم کے کپڑے کا کاروبار شروع کر دیا۔ لیکن چھوٹا بیٹا ابھی کم عمر ہی تھا، اس کے پاس کوئی ہنر نہیں تھا۔ وہ سارا دن گھر میں رہتا اور بوڑھی ماں کا خیال رکھتا۔ بڑے بھائیوں نے چھوٹے بھائی سے کہا، تم گھر میں رہ کر ماں کا خیال رکھو، ہم تمہارا سارا خرچ اٹھائیں گے، تم پیسوں کی فکر مت کرنا۔ شروع میں وہ چھوٹے بھائی کو پیسے دیتے رہے، مگر جیسے ہی ان کی شادیاں ہوئی تو انہوں نے بیویوں کے کہنے پر ماں کا گھر چھوڑ دیا اور اپنے الگ الگ گھروں میں رہنے لگے۔ دونوں بھائی اپنی زندگیوں میں اس قدر مصروف ہو گئے کہ انہوں نے اپنی بوڑھی ماں اور چھوٹے بھائی کی کوئی خبر نہ لی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بوڑھی عورت بیمار رہنے لگی اور چھوٹا بیٹا جس کا نام موسیٰ تھا، اس کے پاس اپنی والدہ کے علاج کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ اپنی والدہ کے علاج کے لیے ایک دن وہ اپنے بھائیوں کے پاس گیا، لیکن انہوں نے کچھ خاص مدد نہ کی۔ شام کو وہ اپنی بوڑھی ماں کے گھر واپس پہنچا اور بھائیوں کے سخت رویے سے اپنی ماں کو آگاہ کیا تو بوڑھی عورت کا دل ٹوٹ گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ آج وہ گزرے ہوئے وقت کو یاد کر کے رونے لگی۔ اس کو وہ سارا وقت یاد آیا کہ کیسے اس نے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھائی اور کیسے ایک خلیفہ کے محل میں 20 سال نوکرانی بن کر کام کرتی رہی۔ انہی بچوں کی خاطر اس نے دوسری شادی بھی نہیں کی تھی۔ اپنی اولاد کی خاطر اس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ آج وہ بیٹے اتنے مالدار ہونے کے باوجود بھی میرے علاج کے لیے کچھ دینار بھی خرچ نہیں کر سکتے۔ موسیٰ نے جب اپنی ماں کو روتے ہوئے دیکھا تو اسے سینے سے لگا لیا اور دلاسا دینے لگا۔ اس وقت موسیٰ نے اپنے دل میں ٹھان لیا تھا کہ وہ کیسے بھی کر کے اکیلے اپنی ماں کا علاج کروائے گا۔ چنانچہ اگلے دن سورج نکلنے سے پہلے وہ کام کے لیے گھر سے نکل گیا۔ وہ سارا دن گلیوں اور بازاروں میں مارا پھرتا رہا، اسے کسی نے بھی کام نہ دیا۔ وہ افسردہ حالت میں اپنی ماں کے پاس بیٹھ گیا۔ ماں نے جب اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھا تو اسے سب کچھ سمجھ آ گیا۔ ماں نے بیٹے سے کہا، بیٹا آج کل حالات ٹھیک نہیں، تم کسی کے پاس مزدوری کرنے کی بجائے کوئی اپنا کام شروع کیوں نہیں کر لیتے؟ موسیٰ نے اپنی والدہ سے کہا، میں بھی اس قابل نہیں ہوں کہ کوئی کاروبار شروع کر سکوں۔ یہ سن کر ماں خاموش ہو گئی اور اپنے بیٹے سے دوسرے کمرے میں پڑا ایک صندوق منگوایا اور اسے کھولنے کے لیے کہا۔ موسیٰ نے جب اسے کھولا تو اس میں کچھ قیمتی زیورات پڑے تھے۔ ماں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم اسے بیچ کے کوئی اپنا چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر لو۔ موسیٰ نے اپنی والدہ کی بات سنی تو کہنے لگا، اماں جی کاروبار تو پھر بھی شروع ہوتا رہے گا، پہلے میں اس زیور کو بیچ کر آپ کا علاج کرواتا ہوں۔ تو اس کی ماں کہنے لگی، نہیں بیٹا، اب شاید میرا وقت پورا ہو چکا ہے، اب میری گنتی کی سانسیں رہ گئی ہیں، اور ویسے بھی تم نے اس زیور کے پیسے میرے علاج پر لگا دیے تو گھر میں کھانے کے لالے پڑ جائیں گے، ابھی تمہارے کاروبار کا ہونا ضروری ہے۔ خیر اگلے دن موسیٰ زیور بیچ کر گھر واپس آ گیا۔ اب اس کے ہاتھ میں کاروبار شروع کرنے کے لیے ایک مناسب رقم موجود تھی، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کون سا کاروبار شروع کرے۔ بازار میں کوئی اسے دکان بھی نہیں دے رہا تھا، تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کوئی ایسا کام کرے گا جس کے لیے اسے دکان کی بھی ضرورت نہ پڑے۔ وہ اسی سوچ میں مبتلا تھا کہ اسے اپنے گھر میں ایک پرانا درخت دکھائی دیا۔ اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے فوراً اس درخت کو کاٹا اور اس کی لکڑیوں سے کچھ تختے بنا کر اپنے لیے ایک قصاب خانہ تیار کر لیا اور اسے بازار میں لے جا کر ایک کونے میں رکھ دیا۔ اور اس کے پاس جو پیسے تھے اس نے ان پیسوں سے ایک بکرا خریدا
उसे कुर्बानी करना आती थी, इसलिए उसे ज़िबा करके अपने भट्टे पर रखकर बेचने लगा। कुछ ही दिनों में उसका कारोबार चलने लगा, क्योंकि वह निहायत ईमानदारी से काम करता था। सारा दिन वो गोश्त बेचता और शाम के वक्त थोड़ा सा गोश्त बचाकर अपनी वालदा के लिए भी ले जाता, और सारा दिन में वो जितने भी पैसे कमाता उसमें अपनी दुकान की ज़रूरत के लिए भी पैसे अलहदा कर लेता, और बाकी जो उसे पैसे बचते उससे अपनी वालदा की दुआ ख़रीदता और कुछ पैसे अपनी वालदा के हाथ में थमा देता। मूसा की माँ अपने बेटे से बेहद खुश हुई और अपने बेटे को ढेरों दुआएं देने लगी कि उसके बेटे ने सारी जिम्मेदारी संभाल ली है। कुछ दिनों बाद उसकी वालदा ने एक रिश्ता देखकर उसकी शादी कर दी। मूसा की बीवी भी मूसा की तरह बहुत पारसा खातून थी। वो अपनी सास का बहुत ख्याल रखती थी और उसके साथ ऐसा रवैया रखती थी कि जैसे वो अपनी वालदा के साथ हो। मूसा की वालदा अपने बेटे और बहू से बहुत खुश थी। एक दिन मूसा की माँ की अचानक तबीयत ख़राब हो गई। उसने अपनी माँ को इस हालत में देखा तो वो अपने माँ के कदमों में गिर गया और माँ के पैरों को पकड़कर रोने लगा। मूसा की वालदा अपने बेटे से कहने लगी, बेटा मेरा वक्त बहुत करीब है, ये दुनिया फ़ानी है, यहाँ कोई भी हमेशा रहने के लिए नहीं आया, खुदा तुम्हें खुश रखे। मूसा ने अपनी वालदा से कहा, अम्मा जान, मैं आपकी उतनी खिदमत तो नहीं कर सका जितनी मुझे करनी चाहिए थी, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप मुझसे खुश हैं? मूसा की माँ बेटे से कहने लगी, बेटा जिस तरह दूसरे बेटों ने मेरा दिल तोड़ा है, उन दुखों से चूर होकर शायद मैं इतना न जी सकती। मैंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन जो अच्छे गुजारे हैं वो तुम्हारे प्यार और देखभाल की वजह से गुजारे हैं। तुमने और तुम्हारी बीवी ने मेरा बहुत ख्याल रखा, मेरे सारे गम दूर हो गए, तुमने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं तुमसे राज़ी हूँ। अल्लाह तुम्हें इतना अता करे कि जितना कारून का ख़जाना था, खुदा तुम्हें कभी किसी का मोहताज ना करे। मेरी दुआ है कि वक्त के बादशाह भी तुम्हें सलाम करें। और बेटा मैं तुमसे गुजारिश करती हूँ, तुम अपने वालिद को ढूंढने की कोशिश करना, क्योंकि मेरा दिल कहता है कि तुम्हारा बाप अभी भी जिंदा है। मूसा ने अपनी वालदा की बात दिल पर लिख ली। कुछ दिनों बाद मूसा की वालदा का इंतकाल हो गया। मूसा ने अपनी वालदा के इंतकाल की खबर अपने भाइयों को भी दी। भाई जिनके पास अपनी माँ और छोटे भाई के लिए कोई टाइम नहीं था, आज अपनी वालदा के जनाजे में शिरकत के लिए आ गए और अपने भाई को बढ़ चढ़कर कहने लगे कि वालदा के कफन दफन और मेहमानों के लिए जो भी अखराजात होंगे वो हम खुद उठाएंगे। लेकिन मूसा ने उन्हें मुंह टोक जवाब दिया और कहने लगा, माँ को तुम्हारे पैसों की ज़रूरत उस वक़्त थी जब वो सांसें ले रही थी, आज उसे तुम्हारे पैसों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किसके पैसों से कफन पहन रही है। तुम्हें तुम्हारे कारोबार और तुम्हारे दीनार मुबारक हों। इसके बाद मूसा ने अपनी वालदा की आखिरी रस्मात अदा की और बड़ी अफसरदा हालत में अपने घर वापस आ गया। अपनी वालदा के इंतकाल के बाद मूसा बहुत परेशान रहने लगा था। वो सारा दिन अपने घर में वालदा की याद में रोता रहता था, क्योंकि उसकी वालदा ही उसके लिए सब कुछ थी। मूसा की बीवी उसे दिलासा देती और उसे समझाती, मूसा इस दुनिया में कोई भी हमेशा रहने के लिए नहीं आया। अब आप अपने कारोबार में ध्यान देने के साथ साथ अपनी वालदा के इसाले सवाब के लिए भी कोई रास्ता बनाएं। चनाचे वो दिल लगाकर मेहनत करने लगा और जो भी पैसे कमाता उसमें से कुछ पैसे अपनी वालदा के इसाले सवाब के लिए सदका कर देता और गरीबों की मदद भी बढ़ चढ़कर करता। कुछ ही दिनों में उसने बाजार में एक दुकान खरीद ली। उसने कपड़े का कारोबार शुरू कर दिया। उसने इस कारोबार में इतनी तरक्की की कि एक बहुत बड़ा ताजर बन गया। वो जिस कदर अमीर होता रहा, इस कदर अल्लाह की राह में भी खर्च करता रहा। अल्लाह ताला को उसका ये अमल इतना पसंद आया कि एक दिन उसे उस बाज़ार का वाहिद मालिक बना दिया, जिस बाज़ार में उसे किराए के लिए भी कोई दुकान नहीं देता था। वो अपनी सखावत की वजह से पूरे शहर में मशहूर होता चला गया। इसलिए बादशाह भी उसे इज्जत की निगाह से देखते थे और कभी कभी तो बादशाह भी इस बात पर हैरान हो जाते थे कि इतनी सखावत तो वक्त के बादशाह भी नहीं करते जितनी सखावत मूसा करने लगा है। अब मूसा के दूसरे भाइयों का हाल सुनिए, जो अपने कारोबार को अपना सब कुछ समझते थे। वक्त की ठोकर लगने से उनका कारोबार मिट्टी में मिलने के बराबर हो गया था। वो जो भी कारोबार करते उन्हें उसमें नुकसान होने लगा। वो दर दर की ठोकरें खाने लगे। उनकी गुर्बत का ये आलम था कि गुजर बसर करने के लिए उनके पास एक वक्त का खाना भी मौजूद नहीं था। मजबूरन उन्हें अपने भाई मूसा के घर पर जाना पड़ा। आज उनका गरूर खाक में मिल चुका था। आज वो अपनी की गई उस हरकत की वजह से बहुत शर्मिंदा थे कि मूसा बेयारो मददगार उनके दर पर पहुंचा था तो उन्होंने उसको ठोकर मार दी थी। और आज जब उनके पास खुद कुछ नहीं था, आज मूसा के दर पर आ चुके थे, लेकिन मूसा ने उनकी तरह उनके साथ कमजरफी का मुजाहरा नहीं किया, बल्कि अपने भाइयों की मदद की। मूसा के इस रवैये की वजह से वो और भी ज़्यादा शर्मिंदा हो गए। खैर वक्त गुजरता गया। मूसा इतना अमीर हो गया कि वो ना सिर्फ अपने गांव में ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करता, बल्कि आसपास के गांव में भी जाकर गरीबों की मदद करता। एक दिन इसी सिलसिले में वो लोगों की मदद करने के लिए दूसरे शहर में पहुंचा था कि रास्ते में उसे एक बूढ़ा फ़कीर नज़र आया। मूसा फ़ौरन उस बूढ़े फ़कीर के पास पहुंचा
और उसका हाल दरियाफ्त करने की कोशिश की। शक्ल व सूरत से वो बूढ़ा फ़कीर बहुत भूखा लग रहा था। मूसा ने उसको खाना खिलाया और उसके साथ बहुत अच्छी तरह से पेश आया। बूढ़ा फ़कीर मूसा के इस रवैये से बहुत मुतासिर हुआ और उससे पूछने लगा, बेटा तुम कौन हो और तुम्हारा क्या नाम है? मूसा ने बूढ़े फ़कीर को अपना नाम बताया कि बाबा जी मेरा नाम मूसा है। जब उसने बूढ़े को अपना नाम बताया तो उस बूढ़े की एक दर्द भरी आह निकली और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मूसा ने उसे रोते हुए देखा तो उसे चुप करवाने लगा और उनसे पूछने लगा कि बाबा जी आप क्यों रो रहे हैं? तब उस बूढ़े ने मूसा से कहा, मेरे सबसे छोटे बेटे का नाम भी मूसा था। मुझे अपने बेटे की याद आ गई। मुझे उससे बिछड़े हुए 25 साल हो गए हैं। मूसा ने उस बाबा से पूछा, आप मुझे बताएं कि आपका बेटा कहाँ रहता है, मैं आपको उसके पास ले चलता हूँ। तो उस बूढ़े ने जवाब दिया, बेटा मुझे अपने बेटे की कोई खबर नहीं, क्योंकि उस वक़्त वो बहुत छोटा था जब मैं उसे घर में छोड़कर रोज़गार के सिलसिले में दूसरे शहर में निकला था। मगर जब मैं दूसरे शहर पहुंचा तो एक ताजर ने मुझ पर चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगाया और मुझे उसी चोरी के इल्ज़ाम में 25 साल के लिए कैद हो गई। 25 साल कैद में गुजारने के बाद आज मैं आज़ाद हुआ हूँ। मूसा ने जब बुज़ुर्ग की बात सुनी तो मूसा का दिल भी पसेज गया। तो मूसा ने उस बुज़ुर्ग से पूछा, क्या आपका नाम इसहाक है? वो बुज़ुर्ग हैरान रह गया और पूछने लगा, बेटा तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? मूसा एकदम से उस बुज़ुर्ग के पाँव में गिरकर रोने लगा और कहने लगा, बाबा जान मैं ही आपका बेटा हूँ। मेरी माँ ने मरने से पहले सच कहा था कि बेटा अपने बाप को तलाश करना। मेरा दिल कहता है कि वो अभी भी ज़िंदा हैं और अल्लाह का शुक्र है कि आज आप मुझे मिल गए। दोनों बाप बेटा एक दूसरे के गले लगकर काफ़ी देर तक रोते रहे। मूसा ने अपने बाप को साथ लिया और अपने घर की तरफ रवाना हुआ। सारे शहर का हाल बदल चुका था। खैर जब वो घर पहुँचे तो वो बुज़ुर्ग उस महल नुमा घर को देखकर कहने लगा, बेटा ये हमारा घर तो नहीं है। मूसा ने बताया कि ये सब मेरी माँ की दुआओं का सिला है। वो बुज़ुर्ग अपना इतना बड़ा आलीशान घर देखकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद उसने अपने 2 बड़े बेटों के बारे में पूछा तो मूसा ने अपने भाइयों का सारा किस्सा अपने बाप को सुना दिया। 2 बड़े बेटों के बारे में सुनकर वालिद का दिल बहुत रंजीदा हुआ और कहने लगा, मूसा वाकई तुमने मेरा बेटा होने का फ़र्ज़ अदा कर दिया। वो तुमसे बड़े थे और उनका हक तो बनता था कि वो बाप की जगह तमाम जिम्मेदारियों को पूरा करते, लेकिन उन्होंने तुम्हें और तुम्हारी माँ को अकेला छोड़ दिया। आज उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है मुझे उन पर कोई पशेमानी नहीं है। मैं उनकी शक्ल तक नहीं देखूंगा। तुम मुझे अपनी माँ की कब्र पर ले चलो। मूसा अपने वालिद को अपनी माँ की कब्र पर ले गया। मूसा के वालिद ने जब अपनी बीवी की कब्र देखी तो वो रोने लगा और उससे मुखातिब होकर कहने लगा, सफ़िया बेगम मुझे माफ़ कर देना, मुझे आने में देर हो गई। मैं तुम्हारा साथ नहीं निभा सका। जिस दर्द से तुम गुजरी हो उसके सामने मेरी 25 साला कैद भी कुछ नहीं है। इस कैद में मुझे कभी भी अपनी हालत की फ़िक्र नहीं हुई। मैं तो हर वक्त इस फिक्र में मुब्तला रहता था कि तुमने पता नहीं अपने बच्चों को कैसे पाला होगा, लेकिन तुमने माँ होकर एक बाप का हक अदा कर दिया। आज तुम्हारे बेटे ने पूरे बगदाद में हमारा नाम रोशन कर दिया है। खुदा तुम्हें जन्नत अता करे। इसके बाद वो बुज़ुर्ग अपने बेटे मूसा के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगा। दोस्तों इस किस्से से हमें 3 कीमती असबाक मिलते हैं। नंबर 1, बच्चों को कभी भी अपने वालिदैन को बोझ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जब वक्त का पहिया घूमता है तो कल को आप भी उसी जगह पर होते हैं जहां वालिदैन आपसे मोहब्बत और तवज्जो की उम्मीद करते थे। नंबर 2, वालिदैन के साथ मोहब्बत, इज़्ज़त और अच्छा रवैया अख्तियार करना चाहिए। ये ना सिर्फ आपके मुस्तकबिल को रोशन करता है बल्कि आखिरत में भी आपके लिए बेशुमार इनामात हैं। वालिदैन चाहे जैसे भी हों, उनकी खिदमत औलाद का फ़र्ज़ है, क्योंकि उनकी दुआएं ही आपका सबसे बड़ा सरमाया है। नंबर 3, खुदा की राह में खर्च करने से इंसान कभी भी गरीब नहीं होता और खुदा इंसान को इतना नवाजता है कि जिसका वो शुमार भी नहीं कर सकता। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।